الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب عمر ایوب خان صاحب، جناب اسد قیصر صاحب اور ان کے ساتھ شریک وفد تشریف لائے ہیں اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے. پہلے بھی تشریف لاتے رہے اور یہ ایک خیر سگالی کا ان کا تشریف لانا تھا. ان کا جو سوچ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے رہیں اور ملکی مسائل پر ہم مشترک موقف لیتے رہیں اور ایک مشترک موقف لینے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے، تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں، تعلقات کی بہتری کی طرف جانا یہ ہمارا مقصود بھی ہے. تلخیوں کو دور کرنا، اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے اور ہم اس جذبے کو خوش آمدید کہیں گے. باقی ملک کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن گزشتہ 10-15 سالوں سے چل رہا ہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کا. اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ 10 گنا اضافہ ہوا ہے. اب یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلند بانگ دعووں کے باوجود وہ عام آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے. اور حال ہی میں چند دنوں پہلے قبائلی علاقے میں جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کی طرف سے اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا اور اعتراف کیا اس کا، غلطی مانی. تو اس قسم کی منصوبہ بندی کے بغیر اندھا دھند قسم کا آپریشن جو عام آدمی کی زندگی کو خطروں کی طرف لے جاتا ہے، غیر محفوظ بنا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی صورتحال. اس وقت چمن بارڈر کے اوپر 6-7 ماہ سے لوگوں کا دھرنا بیٹھا ہے. جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور جو وہاں پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے. کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا اور بے ہنگم قسم کے شرائط عائد کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد ہے. اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. جنوبی وزیرستان کا انگور اڈا، وہاں پر لوگ نکل آئے ہیں، وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں، وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں، وہ اپنا معاش چاہتے ہیں اور کوئی ان کو متبادل نظام نہیں دیا جا رہا. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ انگریز کے زمانے میں جب یہاں پر عارضی لائن ڈیورن لائن کے نام سے بچھائی گئی تھی تو وہ قبائل کے بیچ میں سے تھی. ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا. اب اس قسم کی آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے اور ایک بھائی ادھر ہے، ایک دوسرے کی آواز پہچانتے ہیں، گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا. بہت سے زمانوں میں اس قسم کی کوششیں کی گئی لیکن وہ کوششیں نہیں کامیاب ہو رہی. غلام خان کے اوپر
लोग निकल आए हैं और वहाँ पर इज़्तिराब है। जमरोद के ऊपर लोग निकल आए हैं, वहाँ पर यही इज़्तिराब है कि कदगनें लगाई जा रही हैं आवाम के ऊपर और उनको कोई मुतबादल रोज़गार की तरफ कुछ भी इशारे नहीं दिए जा रहे। तो ये सारी सूरत हाल हमारे मुल्क की है। हमारा उसके लिए फ़िक्रमंद होना एक फितरी अमर है और उस हवाले से हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। कुछ तरजीहात ऐसी होती हैं कि उन तरजीहात के लिए कुछ दूसरी तरजीहातों को मुअत्तल करना पड़ता है। तो इस हवाले से एक बेहतरी की तरफ जाने का एक सफ़र है और इसी हवाले से हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमानान गिरामी हैं जिनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बाकी गुफ्तगू आप उनसे सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के लीडर भी हैं और उनके साथी उन्होंने आज खुले दिलों के साथ हमें यहाँ पे खुशामदीद कहा। जिस तरह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मैं ज़ाती तौर पे हमारा ताल्लुक़ इनसे बहुत पुराना चलता आ रहा है। बड़ी मुस्तफ़ीद गुफ्तगू शनीद हुई। बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में हम लोग चाहते हैं कि चाहे वो JUI फ़े हो, हमारी जितनी पार्टियां हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत कि हम लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जद्दोजहद चलती जाए। और यही मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है, हमारे तहरीक कायद जनाब अचकज़ई साहब की भी यही ख्वाहिश है और हर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है। ये उस सिलसिले की कड़ी है कि आज बड़ी तवील और अच्छी गुफ्तगू हमारी होती रही और ये होती भी जाएगी आगे। JUI फ़े का अपना एक सिलसिला, एक जलसों का सिलसिला चल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी एक सिलसिला हमारा अनाउंस भी किया है और उसको हम लोग इंशाअल्लाह अमली जामा पहना के वो जलसे भी पूरे पाकिस्तान में होंगे, जिसका शेड्यूल हमने जारी किया। कन्वेंशंस भी पूरे पाकिस्तान में होंगे। अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज़ है ही नहीं। आज आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथी हमाद अज़हर साहब आए और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का धावा जो सेंट्रल ऑफिस पे बोला गया, उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस बजाय इसके कि रऊफ़ हसन साहब के हमला आवरों का ताक़ुब करें, जियो फेंसिंग करें, वो इनोसेंट यानी कि बग़ैर किसी कसूर वाले शख्स के पीछे, बेकसूर शख्स के पीछे लगे हुए हैं। इसकी हम लोग मुज़ामत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि चमन पे जहाँ पे धरना हो रहा है, वहाँ पे उन लोगों के जायज़ मुतालबात हैं और जिस तरह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मेरे साथी मेरे भाई असद कैसर साहब ने बात की, उन जायज़ मुतालबात के ऊपर हुकूमत को ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। बजाय इसके कि पासपोर्ट वहाँ पे इस्तेमाल करें, वो CNIC में हर वो सिक्योरिटी फीचर मौजूद है, उसके ऊपर उनको इजाज़त होनी चाहिए। वहाँ पे मारंग बलोच साहिबा हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी क्वेटा में, उनको नहीं करने दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह को सील कर दिया, प्रेस क्लब को सील कर दिया। क्यों? वहाँ पे इजहार राय की इजाज़त होनी चाहिए। यही हुस्न जमहूरियत होता है और इन इक़दामात से कोई मुल्क मजबूत नहीं होता, कमज़ोर होता है, जड़ें कमज़ोर होती हैं, अदम इस्तेकाम होता है और इस चीज़ की हम लोग
شدید مزاحمت کرتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی, سرمایہ کاری آئے گی جہاں پہ آپ کا آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, وہاں پہ انویسٹمنٹ بہتر ہوگی, نوکری کے مواقع ہوں گے. اس موجودہ صورتحال میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل و انصاف کی کوئی وہ چیز کرن نظر نہیں آ رہی. یہ ایک بدترین مارشل لاء کے دور سے بھی بدترین اس وقت یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے اوپر, وہ یہ کام کر رہی ہیں, اور اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. کیسر صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت محبت سے بہت کھلے دل سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا, اور ہمارے جو ایشوز ہیں جو ہمارے مشترکات ہیں اس پہ ہماری ڈسکشن رہی. خاص کر جو اس وقت ملک میں جو ہے نا آئین معطل ہے اور اس وقت ایک بنانا ریپبلک کی ملک بنتا جا رہا ہے, اور جو اس وقت آزادی رائے پہ جو قدریں لگ رہی ہے اور جو قانون پاس ہو رہے ہیں اور جو اسمبلی میں بھی صحافیوں پر پابندی لگائی گئی ہے, سارا ڈسکشن ہماری ہوئے ہیں. اور خاص کر جو پنجاب میں گندم کرائسس ہیں, جو بہت بڑے ہمارے کسان پریشان ہیں, اور پاٹا میں جو نئی ٹیکس کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے, اور ویسے بھی وہاں وار زون ہے, وہاں کوئی مطلب ممکن نہیں ہے کہ اکانومی ویسی بھی وہاں بیٹھ گئی ہے. تو اس سارے ڈسکشن پہ ہمارے مشترکات ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم مشترکہ جدوجہد کریں گے. باقی جو ہے نا پارٹیوں کو مزید بھی جو ہے نا میں جو ہے نا چیزوں کو, لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم تمام طبقوں کو ایک ہونا پڑے گا. اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے, ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتے جہاں ملک میں آپ کسی قانون میں خاطر میں نہیں لاتے. یعنی جو روپسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے, کیا ایک اس ملک میں ہو سکتا ہے جہاں قانون ہو, جہاں قانون کی حکمرانی ہو؟ یہ تو کلیئر میسج دیتے ہیں کہ اس ملک میں طاقت کا قانون ہے, جنگل کا قانون ہے. تو اس کو ہم مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ اس طاقت اور اس ہمت کو ملک کے لیے, قوم کے لیے استعمال کرے. اور تو انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ جدوجہد میں ہم آگے بڑھیں گے, اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں گے. ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی, تب اکانومی اسٹیبل ہوگی. جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں اکانومی بوسٹ ہو جائے گی. میں ساجد صاحب اگر دو بات کر لیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے ہم اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں اور عمر ایوب صاحب کی قیادت میں مولانا صاحب کے پاس آئے تھے, حاضر ہوئے تھے. سب سے پہلے تو میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے, اس الائنس کی طرف سے مولانا صاحب کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ویلکم کہا. ان کے پارٹی کی دوسری قیادت کے ساتھ ہی جتنی دیر ہم بیٹھے رہے, عمر ایوب صاحب نے تفصیلاً اس پہ بات کی, قیصر صاحب نے بات کی, کوئی اس طرح کا ایک نقطہ نہیں رہا کہ جس پر ہمارے اور مولانا صاحب کے بیچ کوئی فرق ہو. ایک پوائنٹ پہ تو سب سے زیادہ اتفاق تھا کہ ملک جو لاقانونیت کی طرف گئی, یا آئین جو معطل کیا گیا, آئین کی حکمرانی اس ملک کو یکجا رہنے کے لیے سب سے ضروری ہے. بلوچستان کے حوالے سے بات کی, میں اتنا کہوں گا کہ چمن پرلت کی بات ہوئی, بارڈر کی بات ہوئی. گوادر پہ اس وقت گوادر شیر کو سیپے کے نام پہ ایک دفعہ پہلے 2020 میں یہ ایشو اٹھا تھا کہ فینسنگ کر رہے ہیں. وہاں کے 1.5 لاکھ جو ایکڑ زمین ہے گوادر شیر کے, جو مقامی آبادی ہے, جو 70-80% لوگ جو مچیرے ہیں اور کسان ہے,
उन सब को फेंसिंग करके अमन के नाम पे ये खारदार था बाढ़ लगाया जा रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगाए कि इस मुल्क की आइन के आर्टिकल 15 में आप किसी के फ्री मूवमेंट को इस तरह पाबंद नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम बैरूनी जो सनतकार है, सरमायाकार है, उसको सीपे के नाम पर बलूचिस्तान लाने के लिए ये लाजमी है अमन कायम करना। हम समझते हैं कि ये बलूचिस्तान के लोग तो एक अरसे से वो आइन के और कानून के नाम से नाबलद हो चुके हैं, इसलिए कि बलूचिस्तान के साथ 70 सालों में जो कुछ हुआ। लेकिन बलूचिस्तान के सियासी जमातें भी यही तस्वर करती, जिस तरह उमर आयुब साहब ने बात की, मौलाना साहब ने बात की, कि अब भी इस मुल्क को, जो नौज़ायदा मुल्क है, ये ईरान की तरह नहीं जो हज़ारों साल तारीख रखती है, न चाइना की तरह है। इस नौज़ायदा मुल्क को सिर्फ और सिर्फ आइन के तनाजुर में इसको बरकरार रखा जा सकता है, को मुख्तलिफ इकाइयों को। तो मैं एक बार फिर जो है मौलाना साहब का बहुत मशकूर हूँ, हमने बहुत कुछ सीखा भी और जो शेर हुआ, तो हम समझते हैं कि आगे बढ़ती जाएगी। एक मिनट जी, दो ज़रूरी बातें मैं करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि पंजाब डेफेमेशन बिल, उसकी हम लोग कौमी असम्बली में और हर जगह पे हमारे जो अराकीन है पंजाब असम्बली में, इसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करेंगे और अदालतों में जाएंगे। और मेरी तरफ से आखिरी बात जो है कि मेरे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पिछली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये पैगाम दिया था कि सारी दुनिया को ये बता दें कि जितना मर्जी है मुझे ये जेल में रखें, पर मैं अपने मौक़िफ़ पे, जो मेरा असूल है आइन और कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में, उससे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि क्या JUIF मुश्तरका जद्दोजहद पर आमादा कर लिया गया है, और क्या अगर अपोजिशन कोई जद्दोजहद सड़कों पर लाती है, आप हिस्सा बनेंगे? आपका सवाल खुद बता रहा है कि अभी खैर सगाली का माहौल बनाना है। अगर ये सवाल मैं हाँ में जवाब दूँ फिर तो हमारे सफर का मौजूद होता था। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये आइन और कानून की जो जद्दोजहद है, इसका रास्ता सिर्फ स्ट्रीट की तहरीक और ये जलसे जुलूस कन्वेंशन ही है, या हुकूमत के साथ कोई बातचीत, किसी कुव्वत के साथ कोई बातचीत का रास्ता जो है वो भी इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, मैं अपनी और अपनी जमात की तरफ से बात करना चाहूँगा कि इस वक्त हम किस पे एतमाद करें। बातचीत तो होती है तब जब आप उस पर एतमाद कर सकें, उनकी कोई एक ज़बान हो, वो कोई बैठकर आपके साथ, और कौन करेगा बातचीत, कौन करेगा? वज़ीर आज़म करेगा, सदर मुमलिकत करेगा, आर्मी चीफ करेगा, अभी तो ये मालूम नहीं कौन बातचीत करेगा, किसके साथ करेगा, फिर एतमाद का क्या माहौल मौजूद है या नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं हमसे सवाल करने की नहीं है, बल्कि उन लोगों से सवाल करने की है जिसके बारे में आप कहते हैं। मौलाना साहब, माजी में हमने देखा था कि जमहूरियत के बचाव के लिए आप निकल आए थे, जमहूरियत के बचाव के लिए धरने भी दिए गए, PDM भी बन गया, उसके बाद जब हुकूमत आई तो खामोशी इख्तियार कर ली गई। तो क्या इस वक्त भी अगर इस तरह की तहरीक का आगाज़ हो जाता है, सड़कों पर भी निकलते हैं और फिर कहीं न कहीं से ऑफर आ जाती है, तो इस तहरीक को ख़त्म तो नहीं करेंगे? अगर आपके पास कोई ऐसे ऑफर की खबर है तो मुझे भी बता दीजिए। आपसे ये सवाल है कि आज तहरीक इंसाफ का वक्त यकीनन आपको एहतजाजी तहरीक में शामिल करने के लिए आया है और मुसलसल राब्तों का सिलसिला भी जारी है। क्या आपको आज तहरीक इंसाफ ने मना लिया, यानी अभी मनाने का सिलसिला जारी है, या आपने कोई एश्योरिटी मांगी है? अभी मनाने का सिलसिला जारी है। श्योरिटी मांगी गई है, कोई बातचीत आगे रास्ते बढ़ाने के लिए कोई श्योरिटी मांगी गई है? ज़ाहिर है जी, जब तक आप संजीदा उमूर पर या मुतनाज़ा उमूर पर कोई बात तय करना चाहते हैं तो एक माहौल तो बनाना पड़ता है, तो इसको आप उसी का हिस्सा। एक मिनट मैं एक पॉइंट स्पीकर साहब बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी। मौलाना साहब भी बैठे हैं और खड़े हैं, तो इससे फ़ायदा दो चीज़ें जो है ना हम यहाँ सपोर्ट करने आए हैं कि जो अदलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन चला है और जिस तरह आज सेनेट में डिस्कशन हुई, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अदलिया के ऊपर ये हमला है और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको जो है ना किल करने के लिए, उसको दबाव के सबूताज करने के लिए सब कुछ हो रहा है। हम मजम्मत भी करते हैं और हम सब जो है ना
अपनी जजेस के साथ है और हमें उम्मीद रखते हैं कि वो मेरिट के मुताबिक फैसले करेंगे। और दूसरा अदलिया की जो बात है, अदलिया जी जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या ये तवक्को की जा सकती है कि आप इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जाएंगे? आपको किसी ने एजेंडा हाथ में दिया हुआ है तो मुझे बता दो यार। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो अपोजिशन की जो जमातें थी वो आपकी छतरी के नीचे थी। आज वो जमातें जो है हुकूमत में है और तहरीक इंसाफ आपकी छतरी के नीचे आना चाह रही है, तो आप अपोजिशन में आके याद आते हैं इनको? ये सवाल अभी हमारे सामने नहीं है, हमारी पार्टी के सामने उसूल का है। अगर हमें 2018 के इलेक्शन पर एतमाद नहीं था तो हमारा मौक़िफ़ आपने देखा। आज वो हमारे दोस्त जो उस वक्त हमारे साथ तहरीक में थे, अगर उन्होंने इस इंतखाब के नताइज को तस्लीम किया है तो हम फिर भी अकेले होकर भी कहते हैं कि नहीं, गलत होता है। तो सोचो 2018 में गलत थी, वो आज 2024 में भी गलत है। आपसे सवाल है, ये बताइएगा कि आपने खान साहब ने साइफर को लहरा के कौम को बताया था कि ये अमेरिका की साजिश है कि मेरी हुकूमत गिराएगी। पिछले दिनों आपके वफद ने अमेरिकी सफीर साहब की मुलाकात हुई है, वो भी कौम को बता दें किस पैराई में मुलाकात हुई है। दूसरा, असद कैसर साहब ने एक सवाल पूरा उन्होंने, असद कैसर साहब ने भी कहा कि अदलिया के जो तनकीद हो रही है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम ये देखते हैं कि जो भी हुकूमत में होते हैं वो अदलिया के साथ होते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं वो, जब आपका दौर हुकूमत था तो आपके दौर हुकूमत में भी ऐसे फैसले आए कि जिन्होंने अपोजिशन ने उस पर तनकीद की और आपने साथ दिया, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे खुशी आपने पूछा। सबसे पहले साइफर के हवाले से, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जस्टिस साहिबान उसको सुन रहे हैं, और जो रोज़ाना के मतलब हवाले से वहाँ पे जो रिमार्क्स और चीज़ें आ रही हैं, तो हुकूमत जो है इस वक्त वो ख़ुद अपनी वहाँ पे कब्र खोदने में बड़ी तेज़ लगी हुई है, और साइफर का केस जो है वो इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद दफन हो जाएगा, दफन हो चुका है, सिर्फ उसका डिसीजन बाकी है। वहाँ पे उस केस में कुछ है ही नहीं, और वो एक बोगस केस है, नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वाज़े मौक़िफ़ था उस वक्त भी, आज भी हम लोग उसकी तायद करते हैं। नंबर 3, अमेरिकन सफ़ीर जो हमारे पास हमें मिलने के लिए आया था, वो वज़ीर आज़म से भी मिला था। उसी ख़त के अंदर 3 अशख़ास का उसने लिखा था, फ़ॉरेन ऑफिस को, वज़ीर आज़म को, स्पीकर कौमी असम्बली को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को। और वो ख़त उसने लिखा था कि ये एक रूटीन की मुलाकात होती है मुख्तलिफ जो आपके रियासत के इदारे होते हैं उनके साथ, उनके जो आपके एग्जेक्टिव के होते हैं और या पार्लियामेंट के होते हैं। तीसरा सवाल का जवाब आपका ये है कि उसके साथ जो गुफ्तशनीद हुई इत्तेफाक के साथ, मेरे भाई असद कैसर साहब भी उसमें मौजूद थे, वहाँ पे वाज़े तौर पे हमने अमेरिकन सफ़ीर को एक बात से बावर कराया कि पाकिस्तान एक आज़ादाना, एक खुद मुख्तार मुल्क है। यहाँ पे हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी होगी, कारी है, वो 1 साल में 86% जो है वो सुकड़ चुकी है, और अफराद ज़ारा आप देख लें आसमान पे चली गई है, और यहाँ पे हुकूमत के हाथ कुछ नहीं है इस वक्त। साबका फाटा में सिर्फ 7 टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं, उसके अलावा इस्लामाबाद में भी शीम मेल ने मतलब जिस तरह के पीटीआई के तर्जुमान पर हमला किया है, तो इस तरह की ये जो चीज़ें चल रही है, तो क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत और बाकी जितने भी सिक्योरिटी के इदारे लोगों की तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, सबसे मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, और बिल्कुल हमारा यूसुफ साहब की बात सही है कि बजाय इसके कि उस पर हमला करने वाले मुजरिमों का पीछा किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्होंने वहाँ पर हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे, तो ये मुनासिब बातें नहीं हैं, और ये जमहूरियत और जमहूरी आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी पर एक सवालिया निशान बन जाता है। अब आप दोनों जो जमातें हैं इनके दरमियान हल तलब मामलात क्या हैं? जो आप लोगों का माजी है वो सारी दुनिया जानती है, तो अब ये बताएं कि क्या कोई चांस है कि आप दोनों मिलके किसी जदोजहद की तरफ अकट्ठे जाएंगे? वो मैं आपको अकेले में बता दूंगा। एक चीज मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी पश्तो एक है। अगली बैठक कब होगी?